Yes, student. Today we discuss the numerical based on equation of motion. कि equation of motion का यूज करते हुए how we can determine the equation numericals on kinematics. First numerical is that if the relations between time and distance is given by a is equal to x square plus bx. ये रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम में. द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन बाय t is equal to ax square plus bx. Here t is in second, x is in meter. A and b are positive constant. b are positive constant. ये आपके पास कोई कांस्टेंट है. t is equal to ax square plus bx. ये रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम के बीच में. a और b पॉजिटिव है. We have to derive the relations between instantaneous acceleration and instantaneous velocity. एक्सेलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगी? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस अबाउ इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन with respect to x, dt by dx, now d by dt, d by dx, t is ax square plus bx. When we differentiate now 2ax plus b, using the general formula of differentiation d by dx x की पावर n x n minus 1, जो भी पावर होती है मल्टीप्लाई होगी. 2x स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, और यहाँ पे 2 प्ले द रोल ऑफ n, पावर इज मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 1. bx का कैसे करेंगे? सेम एज डी बाई डी एक्स. bx का करेगा तो b डी बाई डी एक्स पावर 1, तो b पावर मल्टीप्लाई 1 इंटू में x1 माइनस 1, b x की पावर 0 1, और ये b, that is dt by dx. And we can determine the velocity, that will be what? dx by dt, that is equal to 2ax plus b minus 1. रेसिप्रोकल कर दिया. ये वेलोसिटी है. Instantaneous velocity, we have to determine the acceleration. How we can determine the acceleration? Acceleration होता है dv by dt. We know if we can write dv by dx into में dx by dt, it's okay. dx से dx cancel. dv by dt we can write dv by dx into dx by dt. Now this can be written as velocity. तो v dv by dx, acceleration का one more formula, acceleration v dv by dx. Now here acceleration, that is equal to, ये acceleration है. acceleration को ac से रिप्रेजेंट कर दो. acceleration v dv by dx. now v dv by dx, now integrate of this d by dx, या 2ax b power minus 1, that will be v into में power minus 1 2ax plus b minus 1 minus 1 minus 2, again d by dx of, ये फॉर्मूले हमें आपको पढ़ा रखे हैं, हमने आपको पढ़ाया है 2ax. तो यहाँ पे क्या बना? माइनस v, इसको नहीं, 2ax plus b का होल स्क्वायर इंटू में d by dx. इसका डिफरेंशिएशन क्या बना? b का 0 बन गया, 2ax है तो x के साथ 2a, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2ab 2ax प्लस b का होल स्क्वायर. इट्स ओके, बट वी नो वेरी वेल कि v इज इक्वल टू 2ax प्लस b
की पावर -1 या v इक्वल टू 1/2ax प्लस b। तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1/2ax प्लस b स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। तो दैट इज व्हाट 1 बाई ये v स्क्वायर, तो -2a इसको v स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर इंटू v क्यूब। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। अच्छे से इसको आपने नोट करना है इन योर नोटबुक। One more example. A car starts from rest with an uniform acceleration. कहता है a car starts from rest with an acceleration alpha and it retards with a constant rate. A car starts with a constant rate alpha, as you can write a car starts from rest with a constant rate alpha and it retards with a constant rate beta. कोई कार है starts from rest and with a constant rate alpha and it retard instantly with a constant rate beta. Find maximum velocity acquired by the car, total time taken by the car और टोटल डिस्टेंस। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये पेपर में बहुत आती है, इनको हम ग्राफिकली समझाएंगे। कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0 with a constant rate acceleration alpha and it retard। हमने माना कार जो है को मैक्सिमम जो वेलोसिटी है v मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इट रिटार्ड का मतलब होता है जब फाइनल वेलोसिटी 0 एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू इन रेस्ट। देखिए दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड व्हेन द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 एंड दैट in that situation the accelerated body is said to be what? कि body acquire retardations, deaccelerate. Now we can say this is the time velocity meter per second, this one is the time in second, and from this we can say this is the time t1, this for time t2. t1 is the time for acceleration, t2 is the time for deacceleration, and we can say s1 is the distance for acceleration, s2 distance covered for deaccelerations. t1 is the time for acceleration, t2 is the time for deacceleration, and this distance is going to be given OA. This one is B, this one is C. ये accelerate, deaccelerate, starts from rest. When body starts from rest, car starts from rest, it acquires the maximum velocity V maximum and is brought to rest. Final velocity is 0. Students, we have to determine the maximum velocity and total time, total distance. Slope of
VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा चुके हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन। तो यहाँ एक्सेलेरेशन स्लोप, यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ जो स्लोप होगा दैट इज टेंजेंट थीटा दिस साइड AC बाई AO, AC बाई AO या OA। तो स्लोप यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो गया, यहाँ पे एक्सेलेरेशन है अल्फा, AC आपके पास क्या है AC V मैक्सिमम, OA आपके पास T1 है, एंड वी कैन राइट T1 that is equal to V maximum by alpha. Similarly, the slope of this, ये आपके पास कांस्टेंट रेट बीटा है। Similarly, बीटा is equal to what? V maximum by T2, और implies T2 is equal to what? V maximum by what? Beta. This one is T1, this one is T2. Total time यानी कि slope tangent theta this side upon this side, here is also slope this side upon this side. Slope always represent करता है acceleration, तो यहाँ slope velocity, this velocity by this time, this velocity by this time, और ये आपके पास slope represent करेगा tangent theta। यहाँ पे slope acceleration, यहाँ पे slope de-acceleration theta। Total time now here T1 plus T2. T1 is what? V maximum by alpha, V maximum by beta. V maximum is common, 1 by alpha plus 1 by beta. V maximum, और that is what? यहाँ पे बनेगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, और ये टी, और दैट इज टोटल जो V maximum, we have to determine the V maximum. V maximum is अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू में टी। ये आपके पास क्या आ गया, व्हाट इज दिस, ये V maximum हो गया, ये टोटल टाइम। तो V maximum is equal to अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू में टी, V maximum, और T is equal to क्या बनेगा, अल्फा बीटा अपॉन, ये आपके पास क्या आया था, ये V maximum अल्फा बीटा प्लस बीटा, और T is equal to क्या बनेगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू V maximum। Now last point is what? We have to determine the total distance. So how we can determine the total distance? For the total distance, we know कि distance has a area under velocity time graph. So total distance means the area of VT graph, total distance as that is equal to area of velocity time graph VT graph। तो as टोटल एरिया, इसका एरिया S1 प्लस S2, इसका एरिया 1/2 T1 इंटू में दिस साइड V मैक्सिमम प्लस इसका एरिया 1/2 दिस साइड T2 इंटू में दिस साइड V maximum, and 1/2 V maximum is common and T1 plus T2, और T1 plus T2 को we can say that is T, total time T. Now put the value of total time T and that will be what? Put the value of total time T. अब ये आपके पास total time T है, तो 1/2 ये V maximum का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये टोटल डिस्टेंस। तो वी कैन डिटरमाइन द टोटल टाइम, वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल टाइम, वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल डिस्टेंस। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेनली 2 पॉइंट्स दैट बी रिमेंबर कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस,
and second is slope of velocity time graph that represent the acceleration and deceleration. तो ये हमारे पास जो था ग्राफिकली न्यूमेरिकल्स है, और ऐसे इक्वेशन को ग्राफिकली ही सोल्व करना चाहिए. यदि आप इक्वेशन से करेंगे काफी लेंथी हो जाएगा. वन मोर न्यूमेरिकल. ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो बॉडी है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी. ये वेलोसिटी है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड इट, ये आपके पास वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, and body starts from rest. Starts from rest means u is 0. okay, विदे कोई भी आपके पास है कांस्टेंट रेट, वी डोंट नो द कांस्टेंट रेट फॉर 10 सेकेंड. ये 10 सेकेंड कांस्टेंट रेट से जाती है, एंड it comes to broad rest after covering 64 मीटर. ये 64 मीटर कवर करने के बाद ये इट ब्रॉट टू रेस्ट. और ये कांस्टेंट जो है विच टाइम कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद दिस 8 मीटर पर सेकेंड एंड ब्रॉट टू रेस्ट व्हाट 64 मीटर. ये है. नाउ वी हैव टू, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस वन इज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम and acceleration and deaccelerations we have to find out. We assume that this time is t1, this time is t2, and this time is t3. okay, we have given. Now how we can determine this acceleration? First off, this one is what, ये 8 मीटर पर सेकेंड है, this is 8 maximum. तो now here acceleration, this one is alpha, this one is beta. तो acceleration is what? Now acceleration is velocity by time 0.8 meter per second square. ये acceleration. And this one is s1, this one is s2, this one is x3, and total distance covered by the body is given 584 meter. It's given total distance covered by the body 584 meter. Acceleration we have determined, very simple. S1 area of VT graph. So area of this graph is what? 1 by 2 10 into my S1. We have to determine half 80 square distance. That distance equal to area of VT graph. So area of VT graph means area of triangle 1 by 2. ये T1 into my V 1 by 2. T1 क्या है 10, अब V आपके पास 8, और that is 40 meters. This one is 40 meters. S1 40 meters. And beta we can write deaccelerations beta. Beta means retardations. Deacceleration beta, this side upon this side. So retardation this side upon this side means what? This one is what? 8 by T3. Now here this velocity, this time we don't know about the value of T3. We can calculate. Why? S3 distance has a area under VT graph. So now we have distance S3 is 64.
velocity is what? 8, and time we have to determine. The distance, velocity into time. Now here T3 is what? 64 by 8, or that is what? 8 second. 8 second. The distance T3 we have determined, total distance 64, 8 second. And beta is what now here? 8 by 8, 1 meter per second square. 1 meter per second square. यहां पे आपने निकाल दिया टाइम 8 सेकेंड. दिस वन इज 8 सेकेंड. T3 8 सेकेंड. एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो एरिया हो गया S/2 और दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम. एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस S3. यहां पे एरिया प्लीज सॉरी 1/2, इसका एरिया 1/2. दिस साइड इज व्हाट? 8 and this side is 60 area into में this side is 8 half T3 और that is x3. okay, क्योंकि area of VT graph that is distance. I am again explain area of VT graph, velocity time graph का जो area है that is equal to distance. या distance S3 is area of VT graph और यहाँ पे एरिया ऑफ इसका एरिया, दिस पोर्शन का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ दिस VT ग्राफ, तो 1/2 T3 into this side T3, this side is 8 and this one is 64 और यहाँ पे T3 that is equal to ये 16, 64, T3 is equal to 16 second. Now T3 is 16 second. We have determined S1 determined 40 meter. S2 now what? This is S1 is 40 meter and S3 is S2 we have to find out. S3 is what? 64 meter. T3 हमारे पास है 16 सेकेंड, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 we have given 584 meter and S2 is equal to 580 minus S1 minus S3, तो 584 minus S1 हमारे पास है 40 और S3 हमारे पास है 64 और that is 480 meter. 480 मीटर S2. ये S2 हमारे पास आ गया 480 मीटर. 480 मीटर. हमने एक्सेलेरेशन निकाल दिया. दिस साइड अपॉन दिस साइड टेंजेंट थीटा. एक्सेलेरेशन हमारे पास आया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर डिस्टेंस एज ए एरिया अंडर VT ग्राफ, तो डिस्टेंस एरिया ऑफ VT ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ट्रायंगल का एरिया. T1 we have given 10 second, velocity we have given 8. ये आपके पास हो गया S1 40 मीटर. फिर हमारे पास brought to rest after covering 64 meter, this T3, this one is velocity, total distance 584 meter. रिटार्डेशन के लिए हमें this side upon this side 8 by T3 चाहिए. T3 हमें मालूम नहीं है. 8 by T3, how we can determine the T3? एरिया ऑफ VT ग्राफ, इस ग्राफ का एरिया किसके इक्विवेलेंट है? डिस्टेंस के. डिस्टेंस यहाँ पे हमने S3 माना है, तो S3 is equal to एरिया ऑफ VT ग्राफ. एरिया ऑफ VT ग्राफ that is what? अब डिस्टेंस S3 64, एरिया 1/2. दिस T3 ट्रायंगल का दिस साइड T3, ये V,
यहां से टोटल टाइम आपके ये टाइम जो आ गया 16 सेकेंड। वी हैव टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन इज व्हाट? रिटार्डेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा 8 by T3, T3 is 16 और that is equal to 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन। फर्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन निकालना था, सेकंड पॉइंट रिटार्डेशन निकालना था, और हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो हमें निकालना है टोटल टाइम। हाउ वी कैन डिटरमाइन द टोटल टाइम? T1 हमें मालूम हो गया 10 सेकेंड, T3 हमें मालूम हो गया 16 सेकेंड। नाउ दिस टाइम वी हैव टू डिटरमाइन। ये जो टाइम है ये हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इसका एरिया ऑफ दिस, इसका ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा? दिस साइड इज T2, ये साइड आपके पास T2 और ये आपको मालूम है ये कितने साइड, व्हाट साइड? ये आपके पास 8, S2 आपके पास 480, T2 इंटू में 8 और T2 आपके पास होगा 60 सेकेंड, और टोटल टाइम इज व्हाट? T1 प्लस T2 प्लस T3, 10 प्लस 60 प्लस 16 और 86 सेकेंड। The most important numericals on velocity time graph. I will again repeat this numerical कि एक कार या एनी बॉडी starts from rest u0 with a constant rate means alpha। कहता है in after 10 second, यानी कि it accelerates जो करती है for a 10 second with this velocity and move with a constant velocity and retard after covering 64 meter. That is the statement of the numericals. A car या body starts from rest with a constant rate and it cover कितने velocity? 8 meter per second in 10 second and moves with a constant velocity and finally brought to rest after covering 64 meter. If total distance covered by the body is 584 meter, then determine the acceleration, retardations and total time. तो first off ये 10 second given, ये v is given 8, alpha acceleration, velocity by time, t by time 0.8 meter per second square. फिर ये velocity time graph का जो एरिया है, area of vt graph that is distance, तो डिस्टेंस एरिया ऑफ बीटी ग्राफ ट्रायंगल है तो 1/2, दिस साइड इज T1, दिस इज V, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, S1 40 मीटर आ गया, S1 40 मीटर। इसमें हमें कुछ भी नहीं गिवन था, ना हमारे पास T2 था ना हमारे पास S2 था रेक्टेंगल में। फिर हमने देखा T3, इसमें 64 मीटर S3 डिस्टेंस, इसको S1 माना, इसको S2 माना एरिया, इसका एरिया S1, इसका एरिया S2 रेक्टेंगल का, ये S3, बट ये हमें मालूम है 8, ये हमें मालूम नहीं था, तो बीटा दिस साइड अपॉन दिस साइड 8 by T3। अब हमारे पास प्रॉब्लम आई हाउ वी कैन डिटरमाइन द T3। अब T3 हमने देखा एरिया ऑफ बीटी ग्राफ डिस्टेंस के इक्विवेलेंट, डिस्टेंस S3 माना, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ S3 64 है, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इसका एरिया निकालेंगे 1/2, ये टाइम T3, ये आपके पास वेलोसिटी 8, यहां से T3 16 आ गया, T3 16 आने से बीटा आ गया 8/16, रिटार्डेशन आ गया। रिटार्डेशन आने से हमें इस ये टाइम भी मालूम हो गया, ये टाइम भी मालूम हो गया, ये डिस्टेंस भी मालूम है, ये डिस्टेंस भी मालूम है, बट हमारे पास टोटल डिस्टेंस 584 मीटर है, तो 580 में से दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस निकाल दिया, ये आपके पास 40 है, 40 प्लस ये 64, 104, 584 में से दिस डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया 480 मीटर। 480 मीटर डिस्टेंस आने से हमें ये पता ही है दिस साइड वेलोसिटी है। अब डिस्टेंस एज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अभी मैंने लगाया था यहाँ पे कि डिस्टेंस एज एरिया अंडर वीटी ग्राफ कहाँ पे, ये वाला ये लगाया था आपको। हाउ वी कैन डिटरमाइन, यस, इसके लिए फिर मैंने आपको क्या, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या है आपके पास, एरिया आपके पास क्या था 480,
और वेलोसिटी दिस इज व्हाट टाइम t2 और दिस साइड इज व्हाट v की टोटल डिस्टेंस निकाले हमने 480 और हमारे पास t2 क्या आ गया और v हमारे पास 8 है और t2 हमारे पास 480 बाई 8 और हमारे पास आ गया 60 सेकेंड और ये हमारे पास 16 सेकेंड ये निकाल गया यहाँ पे 16 सेकेंड। इट्स ओके। एरिया ऑफ ये हमें किसका निकाला है ये t3। हाँ एरिया ऑफ ये t3 तो कैसे निकाला था t3 दिस वन इज t3 64 1/2 अगेन रिपीट t3 इंटू में 8 और यहाँ पे आपके पास होगा 16 t3 दैट इज इक्वल टू 16 हाफ 80 t3 t और ये आपके पास आ गया था 4 t3 और ये 64 और t3 इज इक्वल टू 16 सेकेंड। तो t3 16 सेकेंड है और आपके पास t2 60 सेकेंड है और t1 10 सेकेंड है। टोटल 10 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 16 टोटल टाइम इज 86 सेकेंड। One more numericals on velocity time graph. This one is velocity meter per second. This one is time 10 second. इसमें आपके पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे कार स्टार्ट्स विद ए कांस्टेंट रेट f, okay, for covering the distance s and it moves with a constant rate, constant velocity, constant speed and brought to rest. This one is t second. t सेकेंड के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं फिर कम टू ब्रोट टू रेस्ट विद f/2। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, विद ए कांस्टेंट रेट f आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s। ये डिस्टेंस s कवर करता है फॉर ए टाइम t सेकेंड के लिए कांस्टेंट हो जाती है स्पीड, फिर ब्रोट टू रेस्ट विद ए रिटार्डेशन f/2। रेस्ट से जा रही है, इस एक्सेलरेशन से जा रही है, जब इस एक्सेलरेशन से जा रही है तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर t सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी और f/2 से रिटार्डेशन और ब्रोट टू रेस्ट। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ सपोज दिस वेलोसिटी इज v, ये वेलोसिटी v माना, आप स्लोप वही टेंजेंट थीटा, स्लोप टेंजेंट थीटा, velocity by this time is t1, suppose this t or this time is supposed to be t2। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये आपके पास कौन सी है v बाई t, ये आपके पास t1 आ गया एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन f is equal to v by t1 and t1 is equal to v by f। distance s equal to distance as area under vt graph 1/2 t1, this one is v। now here 1/2 t1 की वैल्यू v by f into में v 1/2 v square f और v is equal to 2fs curve, that is the constant velocity root 2fs starts from the graph।
Now this distance is s and it is given the total distance is 5s. It is also given the total distance, यहाँ से बॉडी यहाँ पे आएगी तो टोटल डिस्टेंस 5s है, तो s ये वेलोसिटी है. Now how we can determine the this distance? Suppose this distance is, हमने मान लिया s2. ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब एरिया s2, एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो s2, this side is t, given t second, t into में this side, ये आप निकाल चुके हैं, रूट एफ एस, टी रूट एफ एस. S2 आपके पास आ गया. दिस साइड हाउ वी कैन डिटरमाइन? अब ये F2 टेंजेंट थीटा स्पीड, दिस वन इज रूट एफ एस डिवाइडेड बाई T2, and T2 is equal to what? Or tangent theta, that gives the value of retardation f by 2. So T by 2 is what? Root 2 f s divided by ये T2 divided by f by 2. That is 2 root f s into my f. This one is. Now what will be this distance? अब ये जो डिस्टेंस है, ये s, ये s2, इस डिस्टेंस को s3 मान लो. अब s3 is what? Distance as area under velocity time graph 1/2 area T2, this side T2, this side root fs, 1/2 T2 की वैल्यू 2 root fs into my root fs divided by f. It's okay. यहाँ पे आपके पास 2 से 2 कैंसिल, रूट एफ एस बाई एस बाई एफ ये होगा 2s. अब टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस हमारे पास इसका s है, s प्लस इसका हमारे पास s2 है और ये s3, तो s प्लस s2 हमारे पास हमने निकाल लिया. वेयर इज s2? दिस वन इज s2 t root fs plus s3, and where is s3? s3 is 2s, ये 2s और that is 5s. 5s में से 3s गए, ये आपके पास 2s हो गया, ये t हो गया, इंटू में 2fs का रूट, taking squaring both side 4s, and that is equal to t root s square root fs. 1s से 1s कैंसिल हो गया, and t is equal to what? या s is equal to half ft square. मोस्ट इंपोर्टेंट, s equal to half t square. ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं. ऑल द प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल इन योर बुक्स. ये आप अच्छे से देखेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो प्रॉब्लम आए उनको ग्राफिकली ही सोल्व करें, इक्वेशन से सोल्व ना करें, आप सभी का क्लियर हो जाएगा. ओके, बहुत सिंपल था. कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एट f, it covered distance s with this velocity 10 meter per second. Here is also given velocity, sorry, not v meter per second square. यहाँ से टेंजेंट थीटा, स्लोप v by t1, स्लोप f है, f v by t1, t1 v by f. s is equal to distance as area under vt graph, तो s is equal to half vt graph t1 into में v. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके ये वेलोसिटी निकाल दिया. फिर हमने इसका वेलोसिटी निकालने के बाद इसका डिस्टेंस निकाल दिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल s2, दिस स्पीड इनटू में टाइम, हमने इसका निकाल दिया, स्पीड इनटू में टाइम.
तो दैट इज व्हाट एरिया ऑफ S2। हमने एरिया ऑफ S2 आपका निकाल दिया। ये आपके पास स्पीड एरिया ऑफ S2 हमने कहाँ पे निकाला है, चलो रब कर दिया। एरिया ऑफ S2 ये S3 का निकाला है, ये S3 का एरिया आ गया, ये रूट FS। हाँ ये यस एरिया ऑफ S2 रेक्टेंगल का टाइम, दिस टाइम t गिवन इनटू दिस स्पीड एंड कैलकुलेट द वैल्यू। वन मोर न्यूमेरिकल्स। अब हम आपको जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे वो मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए मोशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जब कोई बॉडी फॉल्स करती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, एवरीबॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस एक्सेलरेशन से, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आती है वो हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से आती है। मैं आपको बताना चाहिए इक्वेशन अंडर द ग्रेविटी, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अंडर द ग्रेविटी में होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी की बजाय जी टी हो जाएगा। यदि बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, और सेम यदि ये बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है आप, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे 2as है, यदि बॉडी ऊपर जा रही है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh हाइट हो गया, और यदि बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे ग्रेविटी पॉजिटिव होती है 2gh। सेम एज h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो h ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है तो g पॉजिटिव, और ऊपर जा रही है तो ut माइनस हाफ, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, ये अपवर्ड्स ये डाउनवर्ड्स। यानी कि बेस सारा वही फॉर्मूले में g की वैल्यू डिफर करेगी, अपर जा रही है तो g की वैल्यू नेगेटिव, एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज व्हेन वी गो अपवर्ड्स एंड इंक्रीज व्हेन वी गो downwards, and that we will prove in gravitation chapter में how the acceleration is decreases when we go upwards and how it decreases when we increases when we go downwards। तो ये आप याद रखेंगे मोशन ऑफ ग्रेविटी में। अब इस पे भी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम आती है कि ये बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट। देखिए ए बॉडी falls from a height, a body falls freely बोल देते हैं, जहां इनिशियल वेलोसिटी 0, falls freely from a height of tower, from a height of tower, किसी हाइट ऑफ द टावर से किसी बॉडी को हमने फॉल कर दिया। a body falls freely from a height of a tower, in last second it cover 44.1 मीटर। जो बॉडी है लास्ट सेकंड में 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन लास्ट सेकंड। देन वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ए बॉडी falls freely from the height of a tower in last second it cover 44.1 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो लास्ट सेकंड मींस SNF 44.1 meters, and SNF का फॉर्मूला we discuss, SNF is equal to u plus a by 2n minus 1, distance covered for nth second। now body falls, body under the gravity है तो a is equal to g हो गया। SNF आपके पास 44.1, rest falls freely u is equal to 0 है, यहाँ पे 0 plus g by 2n minus 1। now 44.1 4.9 होगा, 9g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी कैन ऐड 2n minus 1, 2n minus 1 44.1 by 4.9 9, 2n is equal to 10, n is equal to 5 सेकंड,
N stand for time now here. Height of the tower h ut plus half gt square, u आपके पास 0, t plus half g 9.8, t square 5 का square 4.9 25, that is 1225 meter height of the tower. Such type of questions can be asked. ये है मोशन ऑफ ग्रेविटी पे. One more numericals on motion of gravity. बेटा आपके पास कोई हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर h. h is the height of the tower. A body reach from A to B, यानी ग्राउंड पे आती है किसी हाइट से t सेकेंड में, t सेकेंड में आती है. t सेकेंड में ऐसे द हाइट ऑफ द टावर है. कोई बॉडी t सेकेंड में ग्राउंड को टच करती है when the body is fall freely. Our question is that कि आफ्टर t by 3 सेकेंड बॉडी की पोजीशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर t by 3 सेकेंड. A body falls from a height of the tower h. In t second it touches the ground. t सेकेंड में ग्राउंड को टच करती है, तो what will the location of the body after t by 3 seconds? Is it right? Now h is equal to ut plus half gt square. A is taken as positive, body downwards, u0 and s equal to 0 into t plus half g t square. Now here time t is equal to t square, or t square is equal to 2h by g, or implies t is equal to 2h by g का root. Now here after ये t सेकेंड में t is the time taken from this to this. अब now height s dash when t is equal to t by 3, u 0 plus half g, now t by 3 का whole square, half g t square by 9, half g t square की वैल्यू पुट कीजिए, t square की वैल्यू 2h by g, 2h by g, and that will be what, g से g cancel, h by 9 meter. बॉडी t by यदि टोटल हाइट है तो बॉडी t by 3 सेकेंड में, आई मीन से दैट h by 9 मीटर ग्राउंड को टच नहीं करेगी. h by 9 मीटर, h तो हाइट टोटल हाइट है तो h by 9 मीटर कवर करेगी. तो लोकेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट विल बी व्हाट, h minus h by 9, that is equal to 8h by 9 meter. So many type of questions can be asked in such type कि t सेकंड में ग्राउंड को टच करती है तो t by 3 सेकंड का निकाल लो, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट t by 3 में यहाँ आएगी h by 9 मीटर, और ये आपके पास टोटल h है, और यहाँ से h by 9, यहाँ पे आपके पास होगी what, 8h by 9 मीटर. ये आपके पास कोई वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे पॉइंट है पी क्यू आर. इट इज गिवन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ, एंड t1 एंड t2 इज द टाइम ऑफ डिसेंट. इसका टाइम t1 ऑफ डिसेंट है, p से q का t1 और q से t2. ये टाइम ऑफ डिसेंट है, p से q टाइम ऑफ डिसेंट t1 है, q से r टाइम ऑफ डिसेंट t2 है. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ t1 से t2, टाइम ऑफ फर्स्ट डिसेंट सेकंड डिसेंट, ये रेशियो क्या होगा. ऐसे न्यूमेरिकल में h टोटल हाइट मान लिया h, तो h p q
एंड क्यू आर इज इक्वल टू एच बाई टू इक्वल है। तो नाउ फर्स्ट एच बाई टू इज इक्वल टू रेस्ट false, allowed to fall u0. Now time t1 plus half g t1 square, तो that will be what, half gt square, ये t1, तो यहां पे आपके पास h by 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h go to g और ये t1 square. Now second, when the body comes to this, now total height is what, h, यहां से यहां h by 2 plus h by 2 h half g और टोटल टाइम t1 plus t2, इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2, तो यहां से यहां टोटल टाइम t1 plus t2, टोटल हाइट h by 2 plus h by 2h और that is 2h g t1 plus t2 का होल स्क्वायर. Now divide this equation by this one is what, first, this one is second, divide equation second by first, 2h by h, that is what, g t1 plus t2 का होल स्क्वायर divided by g t1 होल स्क्वायर. ओके, h से h 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये होगा t1 plus t2 divided by t1, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया. ओके, और नाउ रूट 2 t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड t2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 ऑफ t1 एंड रेशियो ऑफ t1 by t2 that is equal to 1 by root 2 minus 1. Today we have discussed the numericals based on equation of motion and motion of gravity, and hoping that you will solve the assignment that is given by me. If you have any problems anytime, you can ask on my WhatsApp number. Okay.